Hello student, this is Assistant Professor Ramkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is RDBMS. So we have already started our fourth chapter. So we will going to continue with the fourth chapter part 2. So in today's lecture we will going to see what is timestamp based protocol. So let us start with the timestamp based protocol. So as the name suggests, what is timestamp? Okay. So basically timestamp means the times of the transaction of concurrency transaction, the time limit which the particular transaction is taking for execution purpose. Okay. For example, this is the overall definition you can say. So let us see. The most commonly used concurrency protocol is the timestamp based protocol. This protocol uses either a system time or a logical counter as a timestamp. Okay, that means the time of the transaction started till the transaction committed. Okay, in last lecture we have completed log based protocol. So in that there was a time present in the diagram. So that was the time when the transaction is granted to execute the data item until the time that transaction is committing to the particular transaction. So log-based protocol manage the order between the conflicting pairs amongst the transaction at the time of execution, whereas the timestamp based protocol start working as soon as the transaction is created. Okay, as soon the transaction is created, the transaction pair of a timestamp will going to be activated. Every transaction has a timestamp associated with it. Okay, and the ordering is determined by the age of the transaction, a transaction created at. So this is an example. Okay, when the transaction was created, data item was allowed to you. So when the transaction was created at the time of 002 clock time would be the older than all the other transaction that comes after it. For example, any transaction Y. So here the transaction name is A. Before that, before that A transaction was there and the time was allocated by the 002. Okay. Now there is a new transaction. The name is Y. Entering the system at 004 is the 2 second younger and the priority will be given to the older one. Okay. Now this logic is basically on the first come first serve. That means the person who is using this current system will be allocated as in first come first serve basis only. Okay. In addition, every time item is going the late in every time data item is given the latest read and write timestamp. This lets the system know when the last read and write operation was performed on the data item. Now see this. अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर टाइम आपका प्रॉपरली मैनेज किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग एग्जाम देने के लिए भी आते हो या फिर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी मोस्ट प्रोबेबली दे रहे हो एज देयर इज एन ऑनलाइन मोड. ओके, ऑनलाइन मोड में आपको क्या होता है, आप सबको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 1 घंटा अलाउ किया था और आपको टाइम स्टैम्प दिया था कि आप 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए कभी भी आप ज्वाइन हो सकते हो, एग्जाम अपनी दे सकते हो. तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो पहले आएगा उसी को पहला पेपर मिलेगा. ठीक है, और वो पेपर देना स्टार्ट करेगा. अगर उसका टाइम खत्म हो गया, ठीक है, वो पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. तो वो पेपर जब उसको अलाउ किया था टिल द टाइम दैट पेपर इज गोइंग टू बी सबमिटेड, द स्टूडेंट what he is doing, he is ticking on the right answer or the wrong answer, he is doing some changes, he is checking that which answer is not taken by me or which answer is ticked by me. All these things he is checking. After that suddenly, okay, suddenly आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपने स्टार्ट किया, 10-15 मिनट बाद यूनिवर्सिटी को फिर से रिक्वेस्ट जाती है कि दूसरे पर्सन ने वहां पे अलाउ किया है लॉगिन के लिए. फिर से यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म रिलीज करती है, एग्जाम पेपर रिलीज करती है, फिर वो स्टूडेंट को एग्जाम पेपर दिखता है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे
जिनको नेटवर्क इशू की वजह से या नेटवर्क स्लो होने की वजह से वो एग्जाम फॉर्म लेट दिखता था। क्यों? क्योंकि उनका टाइम स्टैम्प जो था, ठीक है, टाइम स्टैम्प लॉग इन करने का लेट था, इसलिए उनको वहां से रिक्वेस्ट होके प्रोसेस होने के लिए 2-3 सेकंड लगेंगे, तो वो 2-3 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी वो लोग लेट होते हैं। दैट इज योर टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ये टाइम स्टैम्प मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है। तो आप लोग वो एक टाइम लिमिट के अंदर आप लोगों ने वो ट्रांजैक्शन को रीड किया, राइट किया, कितनी बार रीड किया, कितनी बार राइट किया, ये कितना टाइम आपने ऐसा किया, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का आंसर कभी मुझे लगता है बी है, कभी मुझे लगता है सी है, कभी लगता है डी है, तो मैं वही क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट तक देख रही हूँ, टिक कर रही हूँ, वही सेम रिपीट कर रही हूँ। So how many number of time I am ticking that answer, how many number of time I am reading that answer, okay, that is a timestamp. Now timestamp ordering protocol. So what is the ordering protocol of timestamp? Let us see. The timestamp ordering protocol ensure serializability among the transaction in their conflicting reading and writing operation, okay. अब serializability का मतलब क्या होता है? एक सीरीज प्रेजेंट होना, वो सीरी ऑफ ट्रांजैक्शन में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभार वो सीरीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं, मतलब सडनली कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आके ट्राई करता है आपके डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो ये अनसीरियलाइबिलिटी हो जाता है। सीरियलाइबिलिटी मतलब आपको एक सीरीज दी है, आप लोग अपना एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हो, सडनली कोई दूसरा वहां पे आके अनसीरियलाइबिलिटी अनऑथराइज पर्सन वहां पे आपके डेटा को वहां पे राइड कर रहा है, रीड कर रहा है, आप लोग कंप्लेन क्या कर रहे हो? आई एम नॉट डूइंग दिस, somebody else is doing this, please check someone, ऐसे कुछ तो आप उन्हें बोलते हो, ठीक है। that is the order. This is the responsibility of the protocol system that the conflict pair of the task should be executed according to the timestamp value of the transaction. अब इसका मतलब क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पेयर्स क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शन के, ट्रांजैक्शन को टाइम देंगे, इतने टाइम में ही आपका ट्रांजैक्शन खत्म होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के अंदर यही वैल्यू पास होनी चाहिए, हम लोग ये सारे जो भी है प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। The timestamp of the transaction TI is denoted as an TS, that is transaction timestamp. TS stand for TS stand for timestamp, और यहाँ पे जो T है ये TI transaction है। नेक्स्ट देखो, read timestamp of data item X is denoted by R timestamp X. तो यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा आइटम रीड करना है, ठीक है, तो वहां पे आप लोग कैपिटल R का यूज करोगे और X डिनोट करता है, ठीक है। रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम, तो X क्या है? हमारा डेटा आइटम X है, और R हमारा रीड के लिए है। नेक्स्ट वन, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम X, X के डेटा आइटम को आपको राइट करना है, तो यहाँ पे W डैश टाइम स्टैम्प, तो यानी कि W मतलब राइट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल वर्क एज फॉलो, तो ये वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इफ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल वर्क एज फॉलो, इफ अ ट्रांजैक्शन TI इश्यूज ए रीड X ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे TI ट्रांजैक्शन है, TI मतलब ट्रांजैक्शन I, ये उसका नाम है, यहाँ पे रीड हो रहा है उसका डेटा आइटम X ऑपरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस चेक होगी वो हम इसका एक फ्लो फॉर्मेट जो है प्री डिफाइंड वो हम देखेंगे। इफ TS स्टैंड फॉर टाइम स्टैम्प, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ TI यानी कि ट्रांजैक्शन इज लेस देन राइट माइनस टाइम स्टैम्प ऑफ X, यानी कि यहाँ पे डेटा आइटम, तो इनका क्या कहना है? अगर आपका टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन का यहाँ पे लेस है राइट जो आपने टाइम स्टैम्प किया है डेटा आइटम के ऊपर X, तो यहाँ पे ऑपरेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया है? ज्यादा टाइम ले लिया उसको लिखने के लिए, इसलिए ये रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे इसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पे इफ TS स्टैंड फॉर टाइम स्टैम्प, TI स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट माइनस टाइम स्टैम्प डेटा आइटम ऑन X, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा आइटम X के ऊपर कुछ तो लिख रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जल्दी से लिख लिया,
हमारा टाइम जितना एलोकेटेड था उससे पहले ही हमने हमारा पूरा काम खत्म कर दिया। तो अगर ऐसे होगा तो आपका यहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपका डेटा आइटम भी अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ अ ट्रांजेक्शन TI इश्यूज ए राइट एक्स क्या है, डेटा आइटम, राइट एक्स ऑपरेशन। अब यहाँ पे रीड था, अब यहाँ पे राइट हो जाएगा, अब ये इसका अपोजिट एग्जीक्यूट करेगा। इफ TS यानी कि टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस रीड माइनस टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, आपको जितना टाइम एलोकेट किया गया था डेटा आइटम को रीड करने के लिए, आपने उससे ज्यादा टाइम ले लिया है, तो आप लोगों का यहाँ पे टाइम जो है ऑपरेशन करने का वो रिजेक्ट किया जाएगा। अब इसके अपोजिट देखो, इफ ट्रांजेक्शन इफ टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस देन राइट माइनस टाइम स्टैम्प ऑफ यहाँ पे डेटा आइटम। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आपके जो डेटा आइटम थे आपको वो राइट करने थे, आपने वो राइट कर दिए और आपका टाइम भी लेस था, तो भी आप लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा ऑपरेशन, और यहाँ पे रोल बैक होके जहां से आपने स्टार्ट किया था अपने ट्रांजैक्शन को, वहीं पे आके आपका ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन जो है फिर से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। रोल बैक का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा चले जाओ, फिर से एग्जीक्यूशन करके आप लोग ट्राई करो। ओके, लास्ट पॉइंट यहाँ पे थॉमस राइट रूल। ओके, अब यहाँ पे थॉमस के रूल्स प्रेजेंट है, तो कौन कौन से रूल्स प्रेजेंट है, लेट अस सी। दिस रूल स्टेट इफ TS stand for time stamp, that is transaction TI is less than write minus time stamp of X यानी कि data item, then the operation is rejected and transaction is rolled back। अब इनका क्या कहना है, आप लोगों को जो राइट टाइम उन्होंने अलाउ किया था डेटा आइटम के ऊपर, वो राइट टाइम आप लोगों का वहां पे ज्यादा हो गया, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाया, इसलिए वो डेटा आइटम आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग रूल कैन बी मॉडिफाइड टू मेक द शेड्यूल बाय serializable इंस्टेड ऑफ मेकिंग TI that is transaction rollback, the right operation itself is ignored। अगर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगर आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, रिजेक्ट पे नहीं जाना है बार बार, तो आप क्या कर लो, राइट ऑपरेशन जो है वो ड्रॉप कर दो, इग्नोर कर दो, और आप डायरेक्टली रोल बैक होके जंप कर लो। अब यहाँ पे ये थॉमस रूल का और ये जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन इश्यूज का, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं और फिर ये स्टॉप करते हैं। Now let us see, most probably many of the student are having your Gmail account, right? Now Gmail account is having username and password, as you all guys know. Sometime what happened when we don't have mobile phones, okay? आपके पास कभी कभी मोबाइल फोन नहीं होता, या फिर बेस्ट एग्जांपल, आपके पास कभी मतलब 2-3 साल पहले मोबाइल फोन का इतना क्रेज नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल फोन का, तो आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, तो आप क्या करते थे, जीमेल अकाउंट आपके फ्रेंड के मोबाइल नंबर से आप क्रिएट करते थे, ठीक है, और बैकअप रिकवरी का भी उसी के मोबाइल नंबर पे आप डालते थे। ओके, तो आप लोगों ने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया, और क्योंकि हम लोग वहां पे मोबाइल नंबर क्यों डालते थे फ्रेंड्स का, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करने के लिए आपको वो कोड देते थे, और वो कोड 1 मिनट का ही होता था, 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन रिजेक्ट पे चला जाता था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, इफ TS यानी कि टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन राइट माइनस टाइम स्टैम्प ऑफ X मतलब डेटा आइटम। तो यहाँ पे क्या होता था, आपको 1 मिनट की लिमिट आती थी, वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको SMS आता था, वो SMS के अंदर कोड आता था, वो कोड आपको इंसर्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद आपका जीमेल अकाउंट बन जाता था। ओके, यू हैव क्रिएटेड योर जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। Now suddenly after some years what happened, your friend is not with you, okay, he went away from out of state, or he went away out of India. Now what happened, again sometime after some year you forgotten your password of your Gmail account, and you are retrying to access that Gmail account. What happened here, again that same code will going to be redirected to your friend's mobile number, okay, and your friend is not aware of you that you are trying to reinsert your password.
Now here what happened, your टाइम लिमिट इज गिवन यू अगेन, ओके, आपको फिर से टाइम लिमिट अलाउ की जाती है, बट आप लोग वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो पासवर्ड नहीं डाल पाते हो, फिर से आप लोगों का वहां पे ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाता है, ओके। बट अभी जीमेल वालों ने फिर से अपना अपना जो अपना पर्टिकुलर, ठीक है, ऐप है वो अपग्रेड किया है। अब उन्होंने क्या किया है, आपका अगर मोबाइल अपडेटेड है, आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है जो आपने रजिस्टर किया था, तो जो करंटली आप यूज कर रहे हो उससे आप वहां पे नंबर डाल सकते हो रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जब अपना मोबाइल नंबर वहां पे डालते हो तो आपको एक कोड आता है, आपको एक गूगल के थ्रू ही एक कोड आता है, वो नंबर डिस्प्ले होता है, आपको वहां पे आपके लैपटॉप पे एक नंबर दिखाया जाता है, मोबाइल फोन पे 3 नंबर दिखाए जाते हैं, आपको वही, ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर आपको वही नंबर पे फिंगर टच करनी होती है जो नंबर आपको विजिबल हो रहा है अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आप विद इन टाइम अगर आप वो पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूशन, मतलब आपने सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट कर लिया है विद इन गिवन ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट वन होता है रीड। अब रीड का भी सेम टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर आपने वहां पे ऑपरेशन रीड किया पूरा, वेल एंड गुड। अगर आपने क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन रीड करने में ही बहुत टाइम ले लिया तो आप लोग पेपर कब सॉल्व कर पाओगे, फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे, आपका ऑप्शन जो था रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल थिंग है जो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम कभी इनका यूज नहीं करते या फिर हम लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली इनसे रिलेटेड है, ओके। लास्ट वन देखो, रोल बैक। अब रोल बैक का मतलब क्या होता है, यही एग्जांपल लो, ओके, दिस वन एग्जांपल, सी दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे भी सेम क्या होता है, अगर मैंने वो विद इन गिवन ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अंदर अगर वो फिंगर मैंने टच नहीं की अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे फिर से वो मुझे क्या बोलेगा, दोबारा वहां पे बोलेगा यू वांट टू रीट्राई इट, मैं बोलूंगी यस। अगर मैंने यस किया तो दोबारा वो क्या करेगा, फिर से एक नंबर दिखाएगा, वहां पे 3 नंबर होंगे, फिर से वो 3 नंबर में से एक नंबर मुझे चूज करना है, फिर से वो टच करना है, फिर से वो सेम प्रोसेस, दैट इज रोल बैक। मतलब आप फिर से वही चीजें दोबारा करते हो, लेकिन आपकी वो चीजें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है विद इन गिवन ऑफ टाइम, और आप फिर वो एग्जीक्यूशन के बाद वो मेल आईडी लॉगिन होने के बाद आप उधर कुछ राइट करते हो, रीड करते हो, कुछ अग्रेशन करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, ओके। आया समझ में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 2। Thank you so much, student. We will going to continue this again in next series. Thank you.